Alright, the first question says the curious case of Iffy and Wase. Sanuk Junaid Bhai, I hope this email finds you well. I'm writing to you as a regular follower of your content and also as someone who has observed the online chatter around Iffy Raza and Wase Habib, especially their live streams after cricket matches. First of all, I'm not really a fan of such content because for me cricket ends with the last ball of the match. I never felt the need to jump on YouTube of ex cricketers and other analysts after the game to hear more opinions. But regardless, I want to analyze their channel purely from an analytical point of view and the kind of responses it generates. From my own neutral lens, Vase comes across as the Saints and analyst with solid cricketing knowledge and breakdowns, while Iffy Bhai is the emotional outburst guy who adds comedic virality by fighting with a tree and keeps the flow engaging. From a creator's point of view, they form a perfect balance, and that's what makes them stand out. One common point people raise against them is that they pander to the Indian audience. To me, that is completely untrue. Their content hasn't changed one bit even after the ban. In fact, I've consistently seen them standing up for players like Kamran Ghulam and Sahibzada Farhan while questioning the place of Babar, Rizwan Shaheen, Haris Rauf, and other undeserving players. And honestly, someone who gets labeled as a traitor of Pakistan would never simultaneously be fighting for better players to come into the team. That logic just doesn't add up. Let me also remind you that even their live streams on Afghanistan versus Australia went viral. So mostly all of their content was going viral and not just the ones where Pakistan cricket was being criticized. I've also seen you consistently appreciate Bollywood and their music industry for how effectively they grip the attention and the mindset of Pakistanis. In a way, aren't Iffy and Wase doing something similar to Pakistan? Creating content that hooks Indian viewers and keeps them engaged with Pakistani cricket narratives. If yes, then why aren't people with an Indian audience seen as a strength instead of being treated as a disgrace to the country? What I find strange is that there are plenty of creators in Pakistan who criticize the country on other verticals in a much harsher way. Yet, because their audience is mostly local and not across the border, they never get labeled as Mulk ke Dushman. On the other hand, if someone like Iffy and Wase have a sizable Indian audience, suddenly the raw agent tag is slapped on them. It feels unfair. When a businessman reroutes his shippings from Pakistan to India via the Middle East, he is considered a smart hustler. But when a YouTuber's content is consumed across the border, it suddenly becomes a national security issue. All I want to say is, I may not like the content, but see the merits of that person. Uh, but I see the merits of that person. Unlike the other sellouts, Iffy and Wase have never sold cricket fantasy betting and gambling apps, something they must have had inquiries about since they are talking on cricket. I may not like their content, but I respect them. My question to you is that as both a content creator and a Pakistani, how do you see your friends Iffy and Wase? Do you think the hate they receive is justified, or is it just misplaced cricket patriotism from an audience that doesn't realize how the creator economy works? Looking forward to your thoughts. Warm regards, an educated and a non-emotional Pakistani. So, अच्छा सवाल है इफ़ी और वासे के बारे में कि उनके एनालिसिस से शायद ये अग्री ना करें, बट लाइक उनकी क्रिकेटिंग नॉलेज पे कोई क्वेश्चन नहीं है एंड देव ऑलवेज स्पोकन अबाउट हाउ टू इम्प्रूव पाकिस्तानी क्रिकेट. तो अगर वो ट्रेटर है, देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी की इंडियन ऑडियंस है तो वो तो एक अच्छी बात है इन द सेंस कि अगर भाई इफ़ दैट पर्सन इज एबल कि उसका कंटेंट रिलेटेबल है और उसकी ऑडियंस बड़ी हो रही है, तो इसमें क्या बुराई है. लेकिन वही वाली बात है, चूंकि हम हर इंडियन को दुश्मनी के लेंस से देखते हैं या हिंदू हेट्रेड के लेंस से देखते हैं, तो आपको हर वो चीज़ बुरी लगेगी. नॉट डिनाइंग कि देर आर सम क्रिएटर्स जो कि इस चीज़ को उस तरह प्ले आउट करते हैं, इस तरह की वीडियोस बनाते हैं कि वहाँ से ज़रा वाह ज़्यादा हो और अंधभक्स जो हैं वो ज़रा ज़्यादा चैनल पे नज़र आए. वो ज़्यादातर आपको पॉलिटिकल स्फेयर में नज़र आएंगे. हाउएवर, रही बात क्रिकेट की, अगेन आई एम ऑल्सो, मैं क्रिकेट को इतना बहुत डीपली फॉलो नहीं करता टू द पॉइंट कि मैं उसके बाद एनालिसिस भी सुनूं. However, वासे ऑफ कोर्स इज, ये आपकी बात सही है, द नॉलेजेबल, मतलब जो सही मानों में अच्छी नॉलेज और इन डेप्थ एनालिसिस वो वासे के हैं. वेर एज इफ़ी जो है उनका जो है नॉट डिनाइंग कि उनकी नॉलेज इज़ एनी लेस, बट हाँ, इफ़ी भाई खुद वासे को
अब होल्ड करते हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिकेटिंग नॉलेज। भाई उनको छोटे छोटे गेम्स जो होते हैं या छोटे छोटे ट्रॉफीज उन तक की भाई साल हर साल की नॉलेज होती है, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज़ बिन अ ऑफ स्पिनर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एफी भाई ऑफ कोर्स एड्स द कॉमेडिक वैल्यू, और वही वाली बात है, अलिफ नून अल्लाह नन्ना, अगर एक जो है अपनी नॉलेज से करेगा तो दूसरा जो है उसको चैनल करेगा अपनी कॉमेडिक वैल्यू से, एंड यिन एंड यांग यही बैलेंस आउट करते हैं। और उनकी भी कंटेंट में जो बेस्ट चीज़ यही थी कि दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अब रही बात कि भाई किसी की इंडिया की ऑडियंस ज़्यादा हो गई तो फिर इसमें ये तो फिर आपके लिए सक्सेस की बात है कि यार हमारी मुल्क से एक चीज़ निकली कि भाई दुश्मन मुल्क, डिस्पाइट देखें वहाँ पे भी इसी तरह लेंस से देखा जाता है, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि इट वॉज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, अगर एक बहुत बड़ा ऑडियंस का चंक उनको एम्ब्रेस कर रहा था, विच मीन्स कि उनकी बात में वज़न था, या उनकी नॉलेज थी, या ये कि उनके कंटेंट में जान थी कि हर चीज़ को बालाए ताक रखते हुए वहाँ की ऑडियंस ने भी उनको एम्ब्रेस किया। सैडली उनका स्प्लिट हो गया है वैसे, शायद ये बात उनकी तरफ से भी ऑफिशियली ना आई हो, बट फॉर वट एवर रीजन्स अब वो बेहतर वही बता सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उन्होंने कभी भी किसी भी किस्म की गैमलिंग ऐप्स को, बेटिंग ऐप्स को प्रमोट नहीं किया। इफ़ी भाई से मेरी अभी मुलाकात हुई थी, इनफैक्ट ही इंटरव्यूड मी लास्ट वीक, तो उसमें भी उन्होंने मुझे यही बताया ऑफ द कैमरा एंड ऑन कैमरा एज वेल कि उनका भी इनबॉक्स लाइक एनी अदर क्रिएटर भरा पड़ा होता है ऑफर्स से कि भाई ये कर, और उनकी तो बहुत रेलिवेंट थी ना, वो तो करते ही क्रिकेट पे थे कंटेंट। चलो मैं तो क्रिकेट की मौसमी वीडियोस बनाता हूँ ना, एशिया कप पे बना ली, चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप में, उनका तो भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान पे भी वीडियो आ रही होती है, और बैटिंग तो हर उसमें होती है, सो दे आर द मोस्ट रेलिवेंट पीपल। हाउएवर उन्होंने कभी भी इस तरह की किसी भी कंपनी को स्पेस नहीं दी अपने चैनल पे, विच इज़ लॉडेबल। अब रही बात ये रॉ एजेंट वाली चीज़ें, देखें ये तो फिर ये एक जहालत में तो हम रहते हैं और गंवारों के साथ रहना पड़ रहा है, अब क्या करें। तो हर वो चीज़ जो आप बेहतरी, देखिए मुझे भी यही बोलता है ना कि आप बुराई करते हो पाकिस्तान की, तो अगर मैंने बोल दिया कि जी यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम बुरा है, या यहाँ पे क्लाइमेट के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है, इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं है, लोगों को एक्सेस नहीं मिल रहा, तो वो ये मुल्क दुश्मनी होगी कि जी आप हर वक्त क्रिटिसाइज़ करते हैं। अच्छा भाई, तो फिर नहीं करते, फिर मंजन ही बेचते हैं आपको, ले मंजन फिर बैठे रहें। तो असल में लोग वही वाली बात है, लोग नहीं समझते कि उनके लिए बेहतर दवाई कड़वी होती है, और प्लेटो ने भी यही कहा था कि वो लोग जो स्वीटनर देते रहेंगे सोसाइटी को, जो कि इंटर्न उनके लिए जहर है, लोग हाथों हाथ खरीदेंगे। लेकिन अगर कोई कड़वी दवाई बेचेगा ये बोल के कि यार अभी खाने में कड़वी है लेकिन देर पा यही आपके लिए सूदमंद है और फ़ायदेमंद है, लोग उसको धुतकारेंगे। तो हम भी वही कड़वे हैं। मैं हो गया, मुजम्मिल शाह हो गए, इस तरह की और जितनी वॉइसेस हैं यूट्यूब स्पेस में, सिमिलरली क्रिकेट की स्पेस में फीवा से हैं, अगर वो क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं और अगर वो कह रहे हैं कि कोहली बेहतर है बाबर से, तो उसके पीछे ज़ाहिर है स्टैट्स भी हैं, उसके पीछे पूरा डेटा झूठ नहीं बोल सकता भाई। तो बस फिर वहाँ पे हमारे वाले भी तो अनबख्त तो हर जगह हैं, उधर भी हैं इधर भी हैं, तो वो फिर आ जाते हैं नारा लेके रॉ एजेंट है। ये सबसे आसान काम है ना। अगर आप किसी चीज़ को बेस्ड ऑन डेटा क्रिटिसाइज कर रहे हो या पॉइंट आउट कर रहे हो, तो आपका काम है कि मुझे नल एंड वॉइड करके दिखाएं बेस्ड ऑन योर नॉलेज। लेकिन जिस नल्लों के पास नहीं होती नॉलेज, तो वो फिर आपके ऊपर लेबल ही लगाते हैं, इसराइली एजेंट, रॉ का एजेंट, इंडियन एजेंट, इंडियन ऑडियंस को खुश कर रहा है। अब तो नहीं है ना इंडियन ऑडियंस, अब किसको खुश कर रहे हैं हम? आ रहे हैं अभी भी भाई व्यूज़, ठीक है उतने नहीं आ रहे, कोई मसला नहीं यार, दाल रोटी तो चल रही है ना, वल्ली वल्ली भाई। मगर फिर वही वाली बात कि अपनी 10% इंडियन ऑडियंस को कोई क्यों खुश करना चाहेगा जब 90% ऑडियंस पाकिस्तान की। लॉजिक इज इन लॉजिकिंग, तो लोग समझते नहीं और बस नारेबाजी और फजूल की। तो अब आपका क्वेश्चन क्या था मुझे समझ नहीं आया, आपका बेसिकली ओपिनियन था। हाँ ठीक है, आई ऑल्सो अग्री विद दैट, एंड वासी ऑफ कोर्स होल्ड्स ग्रेट नॉलेज व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। और या थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन, आई होप आई वाज एबल टू आंसर। वही वाली बात है कि क्रिटिसिज्म को एंटी पैट्रियोटिज्म समझते हैं लोग, विच इज़ नॉट द केस।
भाई मैं क्यों, अगर मैं पैट्रियोटिक नहीं हूं, मैं क्यों बेहतर चाहूंगा मुल्क का? मैं तो बोलूंगा फिर जाए भाई, जाए लोग जहन्नुम में, मैं तो ये बोलूंगा ना, लेकिन मैं तो वो नहीं बोल रहा। सिमिलरली अगर इफ़ी और वासे कह रहे हैं कि भाई नहीं चल रहे बाबर रिजवान या शाहीन हारिस नहीं चल रहे, तो और ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, तो वो तो बेहतर ही चाह रहे हैं, तो वो बंदा एंटी नेशनल कैसे हो सकता है? मगर वही वाली बात है ना, कल्ट है हमारे यहाँ, लोगों का कल्ट है। ये बाबर को खुदा बनाया हुआ है, इसको खुदा बनाया हुआ है, छोटे छोटे बहुत सारे खुदा बनाए हुए हैं हमने, और बस हम सुनना नहीं चाहते, लॉजिकली सुनना नहीं चाहते, या लॉजिकली उस चीज़ को आंसर नहीं करना चाहते। तो बस फिर आपके पास पीछे ऐसे अंधों की फौज रह जाती है। सो मेक श्योर यू आर नॉट वन ऑफ देम, और हर चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करें, डेटा ड्रिवन चलें ज़िंदगी में, डेटा झूठ नहीं बोलता, और इमोशंस को साइड पे रखें। इमोशंस होंगे आपके किसी के साथ, लेकिन इमोशंस को साइड पे रख के फिर बात करें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।